Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are liking my videos. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी वर्क फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जिसका नाम है भोली. द चैप्टर नेम इज भोली एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज A.K. Abbas. You all should know the writer name of the stories as it could come in your MCQs in the exam. So hope you all are focusing on the writers of the story also. So now let's start the story. So we'll start this story. As you all can see, the chapter name is Bholi. So here in this chapter there is one young girl, a small girl whose name is Bholi, but her official name is Bholi's official name is Sulekha. And her nickname is Bholi, as everybody in her family used to call her Bholi. You'll get to know why everybody is calling her Bholi, as this young girl Sulekha is a fourth daughter out of 7 children of Ramlal. So the father's name of Bholi is Ramlal, and she is the youngest child of Ramlal. Bholi, before her, her 4 daughters. Ramlal is having 4 daughters and 7 children in total, and she is the youngest one. Her father is a Nambardar of the village. Nambardar means, as he used to collect the revenue from the village. His work was to collect the revenue from the villagers. Where, so what is there? No, there is some problem with Bholi. Not, we can say exactly problems. So there was one incident happened with Bholi when she was just 10 months old, and she just fallen off the cot, which has damaged some part of her brain. So because of one accident in which was took place with Bholi when she was just 10 months old. So in that accident, she just got, her brain got some damage, because of which she remained a backward child, as she was not, जो भोली थी, शी वॉज नॉट दैट ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट. बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट उसके ब्रेन पे थोड़ा उसके ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से शी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ चाइल्ड जो कि चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर ले और समझ ले. तो वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है. फर्दर व्हेन शी वॉज 2 years old, she suffered from an attack of smallpox. As we all know, smallpox is a disease जिसमें क्या होता है, we all get some kind of pimples, you can say, in all over body, और उसके जो scars थे वो रह जाते हैं. ठीक है. So जब भोली was of 2 years old, तो उसके साथ अगेन एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट यू कैन से, इसमें जिसमें क्या होता है, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी और पूरे फेस में क्या हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, और उनके स्कार्स उसके फेस पे और बॉडी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी बॉडी थोड़ी डिसफिगर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक मार्क्स ऑन हर फेस एंड ऑल ओवर हर बॉडी. तो इससे शी बिकम्स क्वाइट अगली. शी वॉज वेरी प्रिटी व्हेन शी वॉज बॉर्न, ओके, बट आफ्टर दिस डिजीज शी जस्ट बिकम्स क्वाइट ugly, because of which she becomes very underconfident. And one more problem she was having, that she was having means when she was at the age of 5, when she started learn how to speak, as she was late in learning the how to speak. At the age of 5 she started speaking, but how? Still, when she was in she started speaking at the age of 5, she started stammering. We all know, जब हम कोई चीज़ क्लियर नहीं बोल पाते, तुतलाना, और यू कैन से कभी कभी हम बहुत अटक अटक कर बोलना, तो शी यूज टू डू दैट, ओके, समटाइम्स. तो स्टैमरिंग प्रॉब्लम जो थी भोली को हो गई थी जब उसने अपनी व्हेन शी वाज ऑफ 5 year old, जब उसने बोलना स्टार्ट किया. ठीक है. सो एक और प्रॉब्लम उसके साथ थी, दैट वाज ऑफ स्टैमरिंग. ओके, वो क्लियरली और जल्दी कोई भी बात नहीं बोल पाती थी. So what happens now? Let's talk about about her family. That Bholi's father was a rich farmer. As I told you, he was a Nambardar who was in a very good position, who used to collect the revenue from villagers. So he was a rich farmer. He was good. मतलब her family, Bholi's family, or you can say her father was in a good position financially.
So all his child means his sons used to he sent his sons to the city for studying, for schooling, you can say. And his daughters means the elder sisters of Bholi were also very good, strong, healthy. They were not like Bholi. They were physically, they were very strong, and even mentally they were good. So they got married. Like first her first elder sister Radha, she got married very soon, and after that her second sister Champa also get married. Then they both were good looking. Both the sisters of Bholi were good looking. But Ramlal was worried about his youngest child, youngest daughter, that was Bholi. वो उसके लिए इतना worried क्यों था? As we all know, भोली के साथ problem थी, as she was not a average kind of child, she was normal child वो नहीं थी, because उसको क्या problem थी? एक तो उसका brain damage था, तो वो normal लोगों की तरह नहीं थी. एंड सेकेंड प्रॉब्लम थी कि उसके जो फेस पे ब्लैक मार्क्स है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अगली दिखती थी, राइट. और उसकी थर्ड प्रॉब्लम थी उसकी स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम. ओके, तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो उसके फादर थे वो उसके लिए बहुत वरीड थे कि हाउ विल शी गेट मैरिड. एज वी ऑल नो क्या होता था अर्ली टाइम्स में, पुराने टाइम में, वहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. ठीक है, वहाँ पे बॉयज़ जो थे, उनके जो बेटे होते थे घरों पे, तो उन लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, उनको स्कूल भेजा जाता था. लेकिन जो गर्ल्स होती थी उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था. उनका मानना था वहाँ पे लोगों का कि जो एजुकेशन है वो गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अल्टीमेटली गर्ल्स हैव टू गेट मैरिड और उन्हें अपने इन लॉज के घर जाके वहाँ पे काम करना है. सो ये वहाँ पे जो मेंटालिटी थी, ये सेम मेंटालिटी रामलाल की भी थी, जिसकी वजह से रामलाल ने अपनी बेटियों की शादी बहुत जल्दी करवा दी. और वो अब कभी उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजा. ठीक है, तो लेकिन उन्हें पता था कि जो और उनकी जो और डॉटर थी रामलाल की, दे गॉट मैरिड इन अ वेरी गुड हाउसेस. बट जो भोली थी, जो गर्ल थी, वो नॉर्मल नहीं थी. इसकी वजह से रामलाल और उसकी जो वाइफ है, उन दोनों को अपनी सबसे छोटी बेटी भोली की टेंशन रहती थी कि हाउ विल शी गेट मैरिड. और उन्हें होप नहीं थी बहुत ज़्यादा कि शी विल गेट मैरिड समडे. ओके, तो उनकी वो जो होप थी वो बहुत ज़्यादा उससे नहीं थी. सो नाउ व्हाट हैपेंस, वन डे तहसीलदार ऑफ द विलेज, एक तहसीलदार जो थे विलेज के, वो वहाँ आते हैं, क्योंकि जो उनका विलेज होता है जहाँ पे रामलाल वॉज अ फार्मर, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग, मतलब जो प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार आते हैं टू जस्ट इनॉग्रेट द स्कूल. उसके इनॉग्रेशन में वहाँ पे जो तहसीलदार होते हैं वो स्कूल में आते हैं. सो जो तहसीलदार हैं वो रामलाल को एडवाइस करते हैं कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर विलेज. मीन्स आप अपने विलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आपके स्कूल में, आपके जो विलेज है उसमें एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है, जिसमें आप, मुझे लगता है कि आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको सबसे पहले अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. तभी आपको देखिए और लोग क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, और भी जितने लोग विलेज में हैं वो भी इसी तरह अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे. तो जब रामलाल को तहसीलदार ये बोलते हैं तो रामलाल के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि ओ, अभी तहसीलदार ने उसे बोला है एज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव. उस टाइम पे भोली की जो एज है वो क्या है, 7 ईयर्स. ओके, भोली कितने ईयर्स की है उस टाइम पे, 7 ईयर्स की. आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक है, जब यहाँ पे स्कूल खुलता है और स्कूल जाने की बात होती है, राइट. तो रामलाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो क्या करे. वो घर आके अपनी वाइफ को बोलता है कि अब क्या है, हमें जो भोली है उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, एज उसकी जो एल्डर सिस्टर्स थी उन सबकी शादी हो गई है. ठीक है, तो अब से भोली बची है. तो रामलाल कहते हैं कि तहसीलदार एडवाइज मी टू डू दिस, तो आई हैव टू डू दिस. तो उसकी मदर बोलती है बट ये स्कूल जाके क्या करेगी, एज उसके जो फादर और मदर थे वो बहुत ज़्यादा दे डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम भोली. तो उन लोग बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं करते थे. ठीक है, तो दे आर लाइक कि इतनी अगली सी बच्ची है, इसको स्कूल जाके क्या करना है, इससे कौन सा पढ़ाई करनी है. तो बट देन मतलब ऑब्वियसली उसके जो पेरेंट्स है खुद उसको बार बार क्या बोले जाते थे कि शी इज़ अगली, शी इज़ डम, वो बहुत बेवकूफ़ है, अगली है, और इससे कौन शादी करेगा. ये सारी जो डिस्कशन होते थे उनके जो पेरेंट्स हैं रामलाल और उसकी वाइफ के बीच में अबाउट भोली. तो बट फाइनली एनी हाउ जो रामलाल है उसने अपनी वाइफ को कन्विंस किया और दे बोथ डिसाइडेड कि दे विल सेंड भोली टू स्कूल.
ठीक है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो भोली को कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। देन व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट डे भोली को अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है। नॉर्मली शी दे डोंट यूज टू गिव हर गुड क्लोथ्स, वो हमेशा क्या पहनती थी, ऐसे ओल्ड क्लोथ पहनती थी जो उसकी सिस्टर्स के पहने हुए थे। कभी भी उसको नई ड्रेस नहीं दी जाती थी, बिकॉज देयर पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें लगता था वो अगली है, वियर्ड है, डम है, तो वो उसको हमेशा पुराने कपड़े पहनाया करते थे। बट नाउ टुडे, जब फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ रामलाल, रामलाल अपनी वाइफ को कहते हैं कि इसको कुछ अच्छी सी ड्रेसेस, अच्छी ड्रेस पहना दो और इसके अच्छे से हेयर वो बना के, हेयर डू करके मैं इसे स्कूल छोड़कर आऊँगा। तो उसको अच्छे से नए कपड़े पहनाए गए, उसे फिर शी मतलब उसको प्रॉपरली ड्रेसअप किया गया। और उसके बाद उसके जो फादर हैं रामलाल, वो उसका हाथ पकड़ के स्कूल लेकर जाते हैं। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ के उसे स्कूल ले जा रहे होते हैं, तो भोली भोली को ऐसे याद आता है कि उसकी एक काऊ थी, लक्ष्मी, जिसका क्या है, जिसको भी एक बार ऐसे ही घर से ले जाया गया था और उसके बाद उसको बेच दिया गया था। तो उसके माइंड में वो बात आती है। सो शी थॉट कि उसे भी कहाँ लेकर जा रहे हैं, उसे कहीं ऐसे लेकर जा रहे हैं। बट शी रियलाइजेस कि आज उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, जो उसको कभी नहीं किया गया, बिकॉज उसे कभी भी अपने पेरेंट्स का वो लव एंड केयर कभी नहीं मिला। तो शी थॉट कि अगर मुझे इतने अच्छे से तैयार करके लेकर जा रहे हैं, तो ज़रूर क्या होगा, मुझे किसी अच्छी जगह पर लेकर जा रहे होंगे। तो देन सम इन स्टार्टिंग तो शी वॉज फिल्ड विथ फेयर कि उसके फादर उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। देन शी थॉट कि कहीं अच्छी जगह शी इज़ गोइंग, ठीक है। तो हर हेड मिस्ट्रेस, मतलब देन जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल होती है, और यू कैन सी उस टाइम पे हेड मिस्ट्रेस बोला जाता था, तो वो वहाँ पे जाते हैं और जो भोली का हाथ है, उसके फादर हेड मिस्ट्रेस को देते हैं कि शी इज़ माई गर्ल एंड नाउ शी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप इसे पढ़ाओ, ठीक है। तो जो हेड मिस्ट्रेस है, तो वो उसको बोलती है क्लास में एक कॉर्नर में यू कैन सिट इन द क्लासरूम। तो वहाँ पे जब भोली जाती है, तो वो देखती है कि उसके बहुत सारे क्या हैं, उसके बहुत सेम एज के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पे बैठी हैं, एंड दे आर राइटिंग समथिंग इन अ स्लेट, क्योंकि उस टाइम पे नोटबुक्स वगैरह नहीं होती थी, तो वो स्लेट्स में लिखा करते थे, ठीक है। सो शी इज़ गोइंग टू स्कूल। वहाँ पे क्या है, वो शी इज़ लाइकिंग कि उसे अच्छा लगता है कि उसकी सेम एज के वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसे देखकर उसे वो खुश हो जाती है, ठीक, शी इज़ ग्लैड। देन व्हाट हैपन्स, भोली वाज सो अट्रैक्टेड विद द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। जब वो क्लास में बैठी होती है, तो वहाँ पे वॉल्स पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं, लाइक बहुत सारी रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, और इन सारी लोगों की इनकी पिक्चर्स वो जब वॉल पे देखती है, तो वो उसे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो देखती है कि अच्छा, ये तो वही पैरेट है, ऐसा पैरेट तो मैंने रियल लाइफ में एक पेड़ पे बैठा देखा था, या एक काव बनी है, तो उसे याद आती है अपनी जो काव लक्ष्मी थी, उसकी उसकी याद आती है। तो वो बड़ी खुश होती है वो सारी चीज़ें देखकर, वो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो उन चीज़ों को देख रही होती है, तो अचानक शी रियलाइजेस कि जो उसकी टीचर है क्लास में, वो उसके पास आके खड़ी हो गई, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक जाती है। एज आई टोल्ड यू, शी वॉज सो, मतलब वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने वाली नहीं थी, शी वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। तो वो नीचे सर झुका लेती है। जैसे वो देखते हैं कि टीचर इज स्टैंडिंग नियर बाय हर, तो जो टीचर है वो उसका नाम पूछती है, व्हाट्स योर नेम। तो जो वो है, वो शी इज़ ट्राइंग टू टेल हर नेम, एंड वो जैसे ही अपना नाम भोली बोलने को होती है, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाती। एज आई टोल्ड यू, उसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, राइट। तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो अपना नाम कंप्लीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से स्टार्टेड क्राइंग, तो उसको रोना आ जाता है। तो उसकी जो टीचर होती है, वो शी वॉज वेरी स्वीट, ओके। टीचर की जो वॉइस थी, वो बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट थी। तो टीचर उससे बोलती है कि जब क्लास ओवर हो जाती है, सारी गर्ल्स क्लास से बाहर चले जाती हैं, तो टीचर उसके पास आती है, एंड शी आस्क्स हर टू गेट अप, कि और शी इज़ नॉट ऑर्डरिंग हर, ओके, शी इज़ जस्ट सेइंग इट वेरी नाइसली। जो उसकी टीचर है, उसको बहुत सॉफ्टली उसको खड़े होने को बोलती है, एंड देन शी आस्क कि ओके टेल मी, ओके। वो बहुत उसे इंकरेज करती है टू टेल हर नेम। जो टीचर है उसकी, वो सॉफ्टली भोली से बात करती है, और वो उससे कहती है कि अपना नाम बताओ। तो एनी हाउ भोली ट्राई करती है, और फाइनली वो अपना नाम जो है पूरा बोल लेती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो टीचर, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है भोली, क्योंकि फाइनली उसके लिए वो एक अचीवमेंट थी कि उसने अपना नाम कंप्लीट किया, ओके। देन उसकी टीचर उससे बोलती है कि यू हैव टू कम डेली टू स्कूल। वो पूछती है उससे, क्या तुम डेली स्कूल आओगी, एवरी डे यू हैव टू कम टू स्कूल, विल यू कम। तो उसकी जो जो भोली होती है, शी सेज येस। और जब वो येस बोलती है, तो बहुत खुश हो जाती है कि पहली बार उससे किसी ने इतने प्यार से बात की होती है, तो वो बहुत खुश है।
तो टीचर ने ऑब्जर्व कर लिया था कि शी वॉज अट्रैक्टेड टू द पिक्चर्स विच वेर देयर इन द वॉल्स, उनको देखिए जो भोली है वो बहुत अट्रैक्ट हुई है, मीन्स शी इज़ लाइकिंग दैट। तो जो टीचर है वो उसे एक बुक देती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, कलरफुल पिक्चर्स, और वो उससे कहती है कि अगर वो इन पिक्चर्स को देखेगी तो वो नेक्स्ट डे उसको और बड़ी बुक देगी और धीरे धीरे वो और बड़ी बुक देगी और इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेगी। तो अपनी टीचर की इतनी अच्छी सी बातें सुनकर, इतनी सॉफ्टली द वे शी टॉक टू हर भोली, तो उससे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, होपफुल हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ टीचर जस्ट मेड हर फील गुड इन स्कूल। देन वॉट हैपन्स, मैनी ईयर्स पास, इस तरह से बहुत सारे स्कूल पास हो जाते हैं और ये प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन जाता है। और इस टाइम तक जो भोली होती है वो भी मतलब शी इज़ ग्रोन अप नाउ, और उसने काफ़ी कुछ पढ़ा होता है। बहुत सालों बाद क्या होता है, विलेज मतलब बहुत प्रोग्रेस कर गया होता है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया है, वहाँ पे सिनेमा बन चुकी हैं, मिल्स बन रही हैं, तो इस तरह से रेलवे स्टेशन हैं, तो उनका जो विलेज है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। देन वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल One night after dinner, Ramlal and his wife were talking about a marriage proposal for भोली। तो एक दिन क्या होता है, अब क्या हो गया, भोली बड़ी हो गई है, तो जो उसके फादर हैं वो एक प्रपोजल के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। प्रपोजल कैसा है, मैरिज प्रपोजल है जो कि किसी के घर से भोली के लिए आया है। ओके, तो कौन है, बिसंबर। बिसंबर, यहाँ पे कोई बिसंबर एक कैरेक्टर है, हु इज द ग्रूम। ओके, बिसंबर इज द ग्रूम। ये ग्रूम का जो हु इज, उसकी एज क्या है बिसंबर की, उसकी एज है 40 ईयर्स। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन भोली की एज मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 21 और 22। ठीक है, इस एज की बच्ची के लिए रिश्ता किसका है, बिसंबर का, हु इज 40 ईयर्स ओल्ड। अब क्या है, अब ये प्रपोजल जब आता है और इट इज हिज सेकेंड मैरिज। ओके, दिसंबर की क्या है, ये सेकेंड मैरिज होगी अगर ये भोली से शादी होती है, बिकॉज उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता जब भोली के लिए आता है तो उसके फादर मदर बात करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि इतने, मतलब ऑब्वियसली दे वर गुड, मतलब फाइनेंशियली हिज फैमिली वाज गुड, दिसंबर्स फैमिली वाज गुड, बट और ऑब्वियसली उन्हें जो होप नहीं थी उसके पेरेंट्स को कि भोली की कभी शादी भी होगी, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आया है। तो उसके फादर कहते हैं कि बट भोली को पसंद आएगा कि उससे डबल एज का जो लड़का है उससे डबल एज का है। तो बट फाइनली जो रामलाल और उसकी वाइफ है वो डिसाइड करते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, और वैसे भी उससे कौन शादी करेगा, चलो एटलीस्ट शी इज गेटिंग समवन टू गेट मैरिड। तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है शादी कर लेंगे। बट ये सारी बातें भोली सुन रही होती है। ठीक है, देन क्या होता है, शादी होने की तैयारियां हो रही होती है, सब कुछ होता है। जो भोली की एल्डर सिस्टर्स हैं वो ये सारा कुछ देखकर, उसकी जो ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है तो उसको देखकर थोड़ी सी एनवियस हो जाती है, थोड़ी जेलस हो जाती है कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो इतनी वियर्ड है, डम है, इतनी अगली है, फिर भी उसकी शादी किससे हो रही है, इतनी अच्छे से हो रही है, इतनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। इससे उसकी जो सिस्टर्स होती हैं थोड़ा सा क्या हो जाती हैं, मतलब जेलस हो जाती हैं। देन शादी का दिन होता है, वो ऐसे दूल्हा बन के दिसंबर आया होता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो वो देखते हैं भोली, मतलब जैसे ही पता चलता है, किसी कोई भोली की फेस देखकर बता दे कि दिसंबर देखता है, तो उसे पता चलता है कि बहुत अगली है, उसके फेस पे तो बहुत सारे मार्क्स हैं। तो दिसंबर सोचता है, तो उसकी सारी जो फैमिली वाले फ्रेंड्स हैं उससे कहते हैं कि अरे यू शुड गेट मैरिड टू हर, एज तुम्हारी जो एज है इसमें तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिलेगी। बट वो बोलता है ऑन सीइंग हर पॉक मार्क्स, उसके जो फेस पे मार्क्स होते हैं, तो दिसंबर आस्क फॉर डाउरी। अब उसे लगता है ये तो अच्छा ही इज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि अभी इतनी अगली लड़की को मैं अगर लेकर जा रहा हूँ तो लेट्स आस्क फॉर डाउरी। अभी तक जो रामलाल है और जो भोली के पेरेंट्स हैं वो इस बात से खुश थे कि चलो उन्हें कुछ देना नहीं है, वो सिर्फ भोली को लेकर जा रहे हैं। तो जैसे शादी का टाइम होता है, देन दिसंबर इज आस्किंग फॉर द डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज, और वो बोलता है इफ यू नॉट गिव मी 5,000 ही थ्रेटन टू लीव विदाउट मैरिंग भोली इफ नॉट गिवन। और वो रामलाल को बोलते हैं अगर मुझे आपने एज अ डाउरी 5,000 रुपीज नहीं दिए तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तो रामलाल से बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत सारी चीजें बोलता है कि प्लीज आप 2,000 मुझसे ले लो, आई डोंट हैव दिस मच, पर वो नहीं मानता है। देन फाइनली एनी हाउ ही मैनेजेस 5,000 रुपीज फॉर एज अ डाउरी फॉर दिसंबर, और वो जो सारे रुपए हैं उसके पैरों पे लाके रख देता है।
देन विसम्बर एंड एवरीवन, मतलब व्हाट हैपेंस कि सब वो वापस उसका फेस देख रहा होता है, विसम्बर उसकी अपनी वो भोली का। तो भोली क्या करती है, अपने जो फेस में जो उसका जो फेस जिससे उसका फेस कवर किया हुआ था उसे फेंक देती है। और शी गेट्स वेरी, मतलब शी गेट्स वेरी एंग्री एज शी वाज डूइंग दिस मैरिज जस्ट बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। ओके, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। एवरीबडी एंड शी सेज कि नो, शी रिफ्यूजेस टू मैरी, दैट आई विल नॉट गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज सच अ बैड पर्सन, ही इज आस्किंग फॉर मनी जस्ट टू नो दैट आई एम अगली। तो इससे क्या होता है, she says to her father कि don't just give him any money, that I will not get married to him। तो वो अपने फादर से कहती है। तो उसके फादर कहते हैं ऑब्वियसली वी ऑल नो ये सब होता है कि हमेशा क्या होता है, जो पुराने टाइम में लड़कियों के जो फादर होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं अपने आप को, मीन्स दे आर ट्राइंग टू, मतलब हर चीज में अपनी अपने बेटी की शादियों के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो वो अब जो विसम्बर है उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो बोली कहती है अपने फादर से कि आपकी आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी रिस्पेक्ट के लिए मैं ये शादी कर रही थी, बट मैं इस गलत गंदे आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप अपने जो रुपए हैं टेक द मनी बैक। ओके, सो इस ये सब सुन के जो वहाँ पे गेस्ट होते हैं, मेहमान होते थे, स्टार्टेड मर्मरिंग। आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार होता है, आपने बहुत सारी स्टोरीज में भी ये चीज सुनी होगी। तो सारे जो गेस्ट है वो मर्मरिंग, वो बातें करने लग जाते हैं और बोली के लिए गलत गलत बोलने लग जाती है कि कैसी लड़की है, शी इज टॉकिंग लाइक दिस, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो अपना स्टैंड लेती है, फॉर्म स्टैंड। इट्स नॉट दैट कि कोई उसको कन्विंस कर लेगा और वो फिर शादी कर लेगी। उसका जो स्टैंड था कि आई विल नॉट गेट मैरिड टू सच अ पर्सन, वो उससे शादी नहीं करती है। तो क्या होता है इसके बाद, जो लड़का है दिसंबर और उसकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं सब हैं, वो वहां से चले जाते हैं। तो रामलाल भोली से कहते हैं कि वट वुड, मतलब अब वो क्या करेगी, अब उसकी शादी से किसी से नहीं होगी तो उसका फ्यूचर, मतलब हाउ हाउ वट विल शी डू नाउ। तो भोली उसे बताती है कि वो शादी नहीं करेगी, वो आपका और अपनी मदर का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी। और वो उनको ये भी बताती है कि शी वुड टीच एट द स्कूल जस्ट लाइक हर टीचर। तो एज आई टोल्ड यू, बचपन में जब वो छोटी थी शी वॉज स्कैर्ड, शी वॉज, तो वहां पर उसकी टीचर ने उसको किस तरह से कंसोल किया था और किस तरह से उसकी हेल्प की थी, तो उससे वो बहुत ज्यादा टच्ड होती है। और वो बोलती है कि आई विल नॉट गेट मैरिड टू एनी वन, आई टेक केयर ऑफ योर्स, एंड मैं क्या करूंगी उसके साथ, अपने ही स्कूल में जहां मैंने पढ़ा है वहां पे मैं क्या करूंगी, टीचिंग करूंगी। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये सब जो ये भोली है उसकी जो टीचर है जिसने उसको बचपन में कंसोल किया था, बहुत हेल्प की थी, सपोर्ट किया था, वो वहां पर ये सब कुछ देख रही होती है। और वो भोली का जो डिसीजन है कि वो शादी नहीं करके अपने पेरेंट्स की केयर करेगी, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी और स्कूल में टीचिंग करेगी, इस बात से उसकी जो टीचर होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है, विद अ सेटिस्फेक्शन शी इज स्माइलिंग देयर। और उसे शी गॉट अ, मतलब कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस, मतलब फाइनली उसको लगता है कि उसका जो काम था, बोली मतलब जिस चीज के लिए बोली वॉज गोइंग टू स्कूल, बोली वॉज लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, आज फाइनली वो कंप्लीट हो गया। सो दिस इज हाउ भोली टुक हर स्टैंड, जिसको क्या बोला जाता था, बेवकूफ, वियर्ड, डम और अगली, आज उसने क्या किया, अपना स्टैंड लिया, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, and very soon you'll get a video with the subjective questions and a multiple choice questions video. So hope you all like this video. If you liked it, please like it, like, share and subscribe. Thank you. See you soon. Bye bye.